کربلا کی فوج میں یزیدی فوج میں موجود 6 ایسے طاقتور پہلوان جو کہ ایک پہلوان 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا، لیکن ان 6 پہلوانوں کو صرف ایک نوجوان نے ہی واصل جہنم کیا۔ وہ نوجوان کون تھا جس نے اتنے طاقتور پہلوانوں کو بھی دھول چٹا دی تھی، جن سے مقابلہ کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا، اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنہا لڑتے تھے، لیکن وہ 6 پہلوان جو کہ ہزاروں کے ساتھ بھی تنہا لڑتے تھے، ان سبھی کو ایک نوجوان نے واصل جہنم کر دیا۔ وہ نوجوان تھا حضرت امام علی علیہ السلام کا پوتا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا بیٹا۔ کربلا کے نوجوانوں میں سب سے خوبصورت، سب سے شیر دل حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ اس ویڈیو میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی جنگ کا واقعہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مقابلے میں وہ 6 پہلوان جو ایک پہلوان 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مقابلے میں آئے۔ حضرت علی اکبر نے ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا، میدان جنگ میں کیسے آئے اور شہادت کیسے پائی، یہ پوری تفصیل میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے اہل بیت کو تسلیاں دے کر الوداع کہا اور میدان کی طرف آئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام 18 سال کے کڑیل جوان تھے اور چہرہ آفتابی خلق اور خلق میں شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب آپ میدان میں آئے تو ان کے رخساروں کی شمع سے میدان جنگ منور ہو گیا، اور عمر سعد کا لشکر جمال علی اکبر دیکھ کر اس قدر حیران ہوا کہ ابن سعد ملعون سے سپاہی پوچھنے لگے کہ اے ظالم، تو ہمیں ایسے خوبصورت جوان کی جنگ کے لیے لایا ہے؟ جب عمر سعد نے دیکھا کہ شہزادہ عقاب کے گھوڑے پر سوار ہے تو کہا یہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے جو شکل و صورت میں شبیہ پیغمبر ہے۔ روایات میں ہے کہ جب اہل مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق غالب آ جاتا تو آپ شہزادہ علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کلام کو سننے کا شوق مجبور کرتا تو شہزادہ علی اکبر کا کلام اور گفتگو سنتے۔ اس پاکیزہ شہزادے نے میدان میں گھوڑے کو جلان دی اور پھر یہ رجس پڑا، میں علی ابن الحسین بن علی ہوں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بڑی شان سے میدان میں آئے اور مبارزہ طلبی کی، لیکن کوئی بھی لشکر سے باہر نہ نکلا۔ بار بار بلانے کے باوجود کوئی بھی نہ آیا۔ پھر شہزادے نے خود ہی لشکر پر حملہ کر دیا اور لشکر کو ایسا درم برم کر دیا کہ دشمن کے سپاہی آگے سے بھاگ رہے تھے اور الامان الامان کی صدائیں دے رہے تھے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام واپس اپنے بابا کے پاس آئے اور عرض کیا، بابا جان، مجھے پیاس نے مار ڈالا ہے اور لوہے کے اس ہتھیاروں نے مجھے آزردہ کر دیا ہے، کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ اگر ایک گھونٹ مل جائے تو میدان لشکر سے صاف کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میرے قریب آؤ۔ جناب علی اکبر علیہ السلام قریب آئے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لبوں اور منہ سے خاک صاف کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی آپ کے منہ میں رکھی تاکہ چوستے رہیں اور تشنگی سے تسکین مل جائے۔ شہزادہ علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے اور مخالف طلب کیا۔ ابن سعد نے طارق بن شبس کو بھیجا کہ جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کا کام تمام کر دو تاکہ ابن زیاد سے تمہیں موصل کی حکومت لے کر دوں۔ طارق نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں فرزند رسول کو بھی قتل کر دوں اور تو اپنا وعدہ بھی پورا نہ کرے۔ عمر سعد نے قسم کھائی اور کہا کہ وعدہ وفائی کروں گا اور یہ میری انگوٹھی لے لو، ضمانت کے طور پہ رکھ لو۔ طارق نے عمر سعد کی انگوٹھی کو پہن لیا۔ موصل کی حکومت کی لالچ میں جناب علی اکبر علیہ السلام سے جنگ کرنے آ گیا۔ یہ مکمل اسلحہ سے مسلح تھا۔ اس نے پہلے نیزے سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پر وار کیا۔ شہزادے نے اس کے وار کو رد کر دیا۔
रद्द करते हुए अपना नेजा उस मलाउन के सीने पर ऐसा मारा कि वो पालस्ते पुष्ट मलाओं से बाहर निकल आया। तारिक घोड़े से जमीन पर गिरा तो शहजादे ने अपने औकाब नामी घोड़े से उसको जमीन पर रोंग कर रख दिया, जिससे उसके बदन के सारे अज़ा टूट गए। फिर उसका बेटा उमर बिन तारिक आया तो वो भी उसी अंदाज से बाप की तरह कत्ल हो गया। फिर तारिक का दूसरा बेटा तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई के कत्ल के गम में आग के शोले की तरह जोश मारता हुआ लपका और शहजादे का गिरबाब पकड़कर अपनी तरफ खींचा ताकि आप घोड़े से जीन पर आ जाएं। लेकिन असदुल्ला के बेटे का हाथ मलाउन की गर्दन पर ऐसा आया कि उसकी गर्दन की रगों और हड्डियों को तोड़ दिया और जीन से जमीन पर दे मारा। ये देखकर लश्कर में हाय हाय की सदाएं बुलंद हो गई और शहजादे की ताकत, हैबत और शुजात के पेशे नजर लश्कर कुफर के कदम उखड़ गए। उमर साद खौफजदा हो गया और मसराब बिन गालिब से कहा कि तुम जाओ और इस हाशमी नौजवान को शिकस्त दो। मसरा मुकाबले में आया तो शहजादे ने नेज़े से हमला किया और अपने दादा अली अलैहिस्सलाम की तरह नारा बुलंद किया, जिससे तमाम लश्कर खौफजदा हो गया, क्योंकि शहजादा अली अकबर को शुजात अपने दादा और बाबा से विरसे में मिली थी। मसरा जान के खौफ से और शहजादे की हैबत से घबरा गया। शहजादे ने अपनी तलवार से उसके नेज़े को काट दिया। जब मिसराज ने तलवार उठाई और हमला करना चाहा तो शहजादे ने अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर उसके सर पर तलवार से ऐसे वार किया कि जीन तक चीर दिया और उसके दो टुकड़े कर दिए। जब दोनों टुकड़े जमीन पर गिरे तो दुश्मनों के लश्कर से हाय हाय की आवाजें बुलंद हुई। उमर इब्ने साद ने मुहक्किम इब्ने तुफैल और इब्ने नौफल को बुलाया। हर एक को हजार हजार सिपाही देकर शहजादे के मुकाबले के लिए रवाना कर दिया। दोनों सरदार हजार हजार का लश्कर लेकर आए और हमलावर हो गए। शहजादे ने उनका हमला भी रद्द कर दिया और फिर उन पर हमला किया और ऐसा शदीद हमला किया कि ये 2000 का लश्कर भी भागने पर मजबूर हो गया। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम उनका ताक़ब करते करते लश्कर तक पहुँचे। आप भूखे शेर की तरह उनको कत्ल करते रहे। इस कदर कत्ल किया कि लश्कर में शोर बुलंद हुआ और पूरे लश्कर ने आप पर हमला कर दिया। हर तरफ से मारो मारो की सदाएं आ रही थी। इसी शोरो गुल में शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की आवाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी उठते कभी बैठ जाते और फरमाते थे, अकबर तेरा बाबा तेरे जोरे बाजू पर कुर्बान। लश्कर ने हर तरफ से हमला कर दिया था, लेकिन शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के आगे जो आता बच ना पाता। उस हमले में शहजादे ने 180 मलाउन को वासिले जहन्नम किया, लेकिन जख्म ज्यादा लग चुके थे और पूरा बदन जख्मी हो चुका था। चुनांचा जख्मों की कसरत और प्यास की शिद्दत और जंग की हिद्दत से इस शेर खुदा की हाथों की हरकत में ज़ौफ और कमजोरी आने लगी। एक मर्तबा फिर लश्कर से निकलकर बाबा की खिदमत में आए और अर्ज किया, बाबा प्यास ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है। कुछ पानी मिलने की उम्मीद है कि पानी पीकर ताकत हासिल कर लूं और दुश्मनों से फिर जंग करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटे को कोई जवाब न दिया, अलबत्ता फरमाया कि बेटा मैं शर्मिंदा हूँ कि तुझे इस हाल में पानी नहीं दे सकता। बस अपने बेटे को सीने से लगाया, अर्थ आलूद चेहरे को बोसा दिया और फरमाया, मेरे जिगर गोशे, ए मेरे मेवाए दिल, मेरे दिल की ठंडक और सुकून, थोड़ा सब्र करो। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाम से सैराब करेंगे। इस बशारत से शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के दिल को खुशी महसूस हुई और सुकून मिला। आप ताज़ा दम होकर फिर मैदान में आ गए और हमलावर हुए यजीदी फौज ने एक साथ शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया, जिससे शहजादे को बहुत ज्यादा जख्म आ गए। उसके बावजूद एक कसीर ग्रोह वासिले जहन्नम किया। जब प्यास की शिद्दत ने हमला किया तो तब फिर बाबा के पास आए और पानी मांगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने महज तसलियां दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब बेटे पर प्यास की शिद्दत को देखा तो फरमाया, मेरे बेटे तेरे बाप पे ये किस कदर गिरा है कि आप उसे बुलाएं और वो आपको जवाब
जवाब न दे। आप उनसे फरियाद करते हैं और फरियाद रसी नहीं करते। बेटा अपनी ज़बान बाहर निकालो। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने तशनलब लबों से अपनी सूखी ज़ुबान बाहर निकाली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान को अपने मुंह में रख दिया कि शायद प्यास की कमी हो जाए, लेकिन प्यास की कमी ना हुई। फिर हजरत ने अंगूठी शहजादा अली अकबर के मुंह में रख दी, प्यास कम ना हुई। आखिरकार फरमाया, बेटा तुम्हारे लिए अब दुनिया का पानी खत्म हो चुका है, अब जाओ शाम से पहले अपने नाना से कोसर पर सैराब हो जाओ। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम मायूस हुए और दोबारा मैदान की तरफ लौटे। शहजादा अली अकबर जंग के मुताबिक गरजते हुए हमले कर रहे थे और किश्तों की पुश्ते लगा रहे थे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पसीना था और रुखसार मखमल के फूल की तरह सुर्ख हो रहे थे। उसी दौरान ऐसी जगह हमला करते हुए गुजरे जहां मुर्ता बिन मुनग्ज खैमगाह में खड़ा था। उसी मलाउन ने जहर आलूदा तलवार ऐसे जोर से सर पर मारी कि आबरू तक जख्म हो गया। अभी इस जख्म से आसूदा नहीं हुए थे, उसी मलाउन ने नेजा शहजादे के पहलू में मारा, जिससे आसपास माने विलायत का चांद अपनी जीन पर संभल ना सका। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। जब लश्कर ने शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की ये हालत देखी तो भागते हुए शहजादे के करीब आ गए और उनका मुआसरा कर लिया और तलवारों से आपके जिस्म मुबारक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक मलऊन ने जहर आलूदा तीर शहजादे के हलक में मारा, जिससे शहजादे की तवानाइयां खत्म हो गई। एक हाथ से डाल और दूसरे हाथ से तलवार गिर गई। शहजादे ने घोड़े की गर्दन पर बाहें डाल दी ताकि घोड़ा कयाम की तरफ ले जाए। हर तरफ से लश्कर की कसरत थी और घोड़ा कयाम का रास्ता भटक गया था। बजाय कयाम की तरफ जाने के दुश्मनों के लश्कर में चला गया। जहां से घोड़ा गुजरता हर मलाउन तलवार का वार करता, बल्कि जिस मलाउन के हाथ में जो कुछ था वो मारता। यजीदी लश्कर ने इस तरह मारा कि उन्होंने शहजादे के जिस्म मुबारक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो ही शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम जीन से जमीन की तरफ आए तो बाबा को पुकारा और फरमाया, बाबा मेरा सलाम, मुझे मेरे नाना ने सैराब कर दिया।